Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. The topic is about multi-vibrators. Multi-vibrators ऐसे circuits हैं, the circuits that have two different values for its output, and output may change from one value to other value with time. After some time, output may change from one value to other value, or it may periodically change from one value to other value. These two values are the complementary of each other. मीन अगर एक वैल्यू आपके पास हाई है तो दूसरी वैल्यू लो होगी, या एक वैल्यू अगर आप उसको ऑन कह रहे हैं तो दूसरी वैल्यू जो है वो आपके पास ऑफ हो सकती है. सो द सिस्टम और द मल्टी वाइब्रेटर्स आर द सर्किट्स और द सिस्टम्स दैट कैन चेंज द आउटपुट वैल्यूज़ बिटवीन टू वैल्यूज़. मीन आउटपुट स्टेट जो है वो चेंज हो सकती है दो वैल्यूज़ के साथ. Now we will talk about the different types of multivibrators. Before we talk the different types of multivibrators, here are the two states, high, low और on, off. अब जो सिस्टम है वो हाई स्टेट से लो स्टेट या लो स्टेट से हाई स्टेट में कितने टाइम के बाद मूव करता है, या हाई वैल्यू लो वैल्यू में कितनी देर के बाद चेंज हो रही है, इस या जो सिस्टम है वो कौन सी स्टेट में ज़्यादा टाइम पास करता है, थोड़ा टाइम किस स्टेट में पास करता है, इस चीज़ को डिपेंड करते हुए आप इसको डिवाइड कर सकते हैं इनटू थ्री टाइप्स. मीन हाउ द स्टेट्स ऑफ द सिस्टम आर बीइंग चेंज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम. डिपेंडिंग अपॉन दिस the multivibrators can be divided into three types. So there are three types. The three types are astable, monostable and the bistable. Astable mean not stable. It means that system will change from first state to second state or from second state to first state periodically, and it will not remain in one state for very long time. Sorry, mean astable mean it is not stable in any state. ये किसी भी स्टेट में स्टेबल नहीं है. अगर ये हाई स्टेट में है तो कुछ टाइम के बाद लो स्टेट में चला जाएगा, अगर ये लो स्टेट में है तो कुछ देर के बाद कुछ टाइम के बाद ये हाई स्टेट में चला जाएगा. तो इट इज़ नोन एज astable or also the free running. Free running mean it is running or changing its output without any input signal or any conditions. So it is known as free running. Free running oscillator भी आप इसे कह सकते हैं. Second one is monostable. Monostable mean if the system is in high state then it will remain in high state, and if you want to move it into low state you have to apply some external signal to move it into the low state, and when it moves into the low state it will return back into previous state after passing some time in second state and will remain in first state. So monostable means stable in single state. जिस स्टेट में ये स्टेबल है आइदर लो स्टेट में या हाई स्टेट में, तो ये उसी स्टेट में रहेगा. दूसरी स्टेट में मूव करेगा तो थोड़ी देर बाद कुछ टाइम के बाद दोबारा पहली स्टेट में आ जाएगा. हियर इज द बाइस्टेबल. बाइस्टेबल मीन द सिस्टम इज स्टेबल इन बोथ स्टेट्स. बाइस्टेबल, इफ द सिस्टम इज इन हाई स्टेट then it will remain in high state unless you try to move it into low state. After it moves into low state it will continue in low state and will not return to high state unless you again apply the external signal to move it into the other state. So the bistable, we will discuss one by one by discussing by having a discussion on the basic circuits by using resistors, capacitors and the transistors.
The basic A-stable system can be built up by using RC circuits and the transistors. RC circuits are being used here to perform the timing. Signals are to produce a time for the movement of state from for the movement of output from one state to other state. So let we start from the circuit that is used for the A-stable implementation, and the circuit consists of four resistors, two capacitors, and the two transistors. So for the two states, let we consider that the two states are on and off states. Mean one state is on and other state is off. तो वी विल टेक आउटपुट फ्रॉम आइदर Q1 और Q2. दो ट्रांजिस्टर से आप यहाँ पे आउटपुट ले सकते हैं, आइदर Q1 से आप ले सकते हैं या Q2 से. दोनों की जो आउटपुट है, आउटपुट फ्रॉम दिस टू ट्रांजिस्टर इज कंप्लीमेंट्री. कंप्लीमेंट्री मीन complement of each other. As a work principle, we will see that circuit keeps one transistor on and other transistor off at a time. Mean at a time दोनों ट्रांजिस्टर ऑन नहीं हो सकते और एट ए टाइम दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ नहीं हो सकते. तो वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि ए स्टेबल सर्किट विल कीप वन ट्रांजिस्टर ऑन एंड अदर ऑफ. So we will start from. Now as a state 1, let we assume that Q1 is on and Q2 is off. For if our first state, पहली state के लिए आप Q1 is on and Q2 is off. As Q1 is on, it means that Q1 is conducting and is operating in saturation region. Saturation region of operation. So Q1 is conducting and Q2 is off. Now as Q1 is on, it means that VB1 or base voltage at the terminal of Q1 will be approximately equal to 0.7 volt, and VCE will be equal to VC minus VE, and it will be equal to VC because emitter is grounded for both the transistors. So it means that VC1 will be equal to VCE1, and for a transistor that is operating in saturation, VCE is approximately equal to 0.2 volt. VCE. तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं. वन इज फॉर एमीटर collector voltage and other is for base voltage as the transistor Q1 is operating. As Q1 is on, it means that collector is at 0.2 volt with respect to emitter, और emitter जो है वो ground पे है. You can neglect this 0.2 volt and you can approximate VC1 as approximately equal to 0 volt. तो ये आपके पास 0 volt आ जाएगा. It means that collector from this side for VC1 mean collector for Q1 will be at 0 potential, ground होगा. It means that lower side of R1 and left side of C1 will be at 0 potential, and current will pass through R1 will not move towards C1, but it will move through Q1 to the ground as there is zero resistance due to this Q1. Second, आपके पास ये है कि R3 current is also flowing through R3 and R4. Now what happens here? यहाँ पे आपके पास Q2 is off and Q1 is on. Q2 is off, it means that VB2 is approximately 0 volt. Definitely on नहीं है. जब on नहीं है तो it means that this will, or similarly VC2 will be equal to VCC,
मीन जब यहाँ से कंडक्शन नहीं होगा तो इट मीन्स डैट यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा, इट मीन्स डैट जितना पोटेंशियल होगा वो इस सर्किट के ट्रांजिस्टर के अक्रॉस आएगा, डैट इज Vc2 विल बी इक्वल टू Vcc। नेक्स्ट, एज Q1 इज कंडक्टिंग Q2 इज ऑफ, तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा R3 में से और R4 में से, इनके साथ क्या होगा, R4 current through R4 cannot flow through Q2, so it will move towards C2 and will charge the capacitor C2 up to a value VCC। और लेफ्ट साइड में as Q1 is conducting, so current through R3 will pass through Q1। तो आपके पास दो चीज़ें आ गई, R4 is charging C2 and R3 is providing the current to maintain the Q1 in on position। So R4 charges C2 to VCC from right side, right side से capacitor C2 is being charged to VCC, और लेफ्ट साइड से बिकॉज लेफ्ट साइड इज कनेक्टेड टू VB1 base of Q1, so left side will be at 0.7 volt and it will not rise above 0.7 volt because base is conducting mode में है, फॉरवर्ड बायस में है, तो it will not allow the potential to rise above 0.7, so potential difference for C2 will be equal to VCC minus 0.7 and this will be the potential difference for C2। R3 keeps Q1 on, R3 will provide the necessary current to maintain the Q1 in on position। Second आपके पास क्या है, now R1 is passing the current through Q1, R2 is charging the C1 because R2 में जब करंट फ्लो करेगा तो this current cannot move towards VB2 because Q1 is in ऑफ पोजिशन, तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा एंड R2 will charge C1 from the right side। as C1 will charge, it will provide the voltage to base for Q2 and as the voltage of C1 approaches the value of 0.7 volt, it will turn on the Q2। आफ्टर एज R2 चार्जेस C1 फ्रॉम राइट साइड, यहाँ से R2 जो है वो C1 को चार्ज कर रहा है, C1 इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी वोल्टेज फॉर VB2 एंड विल टर्न ऑन द Q2 व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस C1 रीचेज द वैल्यू ऑफ 0.7 वोल्ट। जब 0.7 वोल्ट आ जाएगा आफ्टर सम टाइम T1, तो Q2 विल बी टर्न्ड ऑन। अब नेक्स्ट देखिएगा, जब Q2 विल बी टर्न्ड ऑन, देन इट मीन्स दैट द कलेक्टर वोल्टेज फॉर दिस Q2 विल बी एट 0, मीन इट विल पुल इट्स कलेक्टर टू द ग्राउंड टूवर्ड्स जीरो पोटेंशियल। जैसा कि आपने देख लिया, Q1 जब ऑन होगा तो VB1 जो है 0.7 वोल्ट और VC1 जो वो 0 वोल्ट होगा आपके पास। तो हम एक तो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं और दूसरा हम इसकी डिस्कशन करते हैं। एज Q2 टर्न्स ऑन ड्यू टू चार्जिंग ऑफ C1, इट विल पुल द कलेक्टर टूवर्ड्स जीरो पोटेंशियल 0 volt and this 0 volt will pull the right side of C2 to the ground, mean capacitor C2 that is connected from the right side to the collector will be pulled to ground और जीरो पोटेंशियल। जब ये कैपेसिटर C2 जो है वो इसको ग्राउंड की तरफ पुल किया जाएगा, इससे पहले इसका जो वोल्टेज है राइट साइड पे डैट वाज इक्वल टू VCC बिकॉज Q2 वाज नॉन कंडक्टिंग, सो राइट साइड से जो पोटेंशियल था C2 का वो VCC की इक्वल था। अब जब इंस्टेंटली Q2 राइट साइड से C2 को पुल करेगा ग्राउंड पे, तो इट मीन्स दैट द राइट साइड विल बी एट जीरो पोटेंशियल। As we know that capacitor cannot change its potential instantly,
So it means if you have to move right side to the ground to maintain the potential across C2, the left side will also moves in such a way so that the total potential may be maintained. अगर आप राइट साइड को VCC डाउन करेंगे तो डेफिनेटली लेफ्ट साइड भी VCC डाउन हो जाएगा। तो आपके पास जो न्यू कॉन्फ़िगरेशन आएगी C2 के लिए, डेट विल बी राइट साइड पे अगर आपके पास 0 वोल्ट आ रहा है ड्यू टू Q2, तो लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा? लेफ्ट साइड पे पहले आपके पास था 0.7 वोल्ट, तो जब ये VCC डाउन हो जाएगा ये आपके पास आएगा माइनस VCC प्लस 0.7। तो इट मीन्स लेफ्ट साइड पे C2 की लेफ्ट साइड पे अब नेगेटिव पोटेंशियल आ गया और ये नेगेटिव पोटेंशियल विल टर्न ऑफ Q1। ये जो पॉजिटिव फीडबैक है C2 की वजह से ये जो है ये Q1 को टर्न ऑफ कर देगा। तो पहली स्टेट में हमने देख लिया Q1 वाज ऑन एंड Q2 वाज ऑफ। नाउ Q2 टर्न्स ऑन एंड Q2 टर्न्स ऑफ। तो हम ज़रा इसमें सर्किट डायग्राम और डिस्कशन के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर लें। तो पहली स्टेट में हमारे पास Q1 is on and Q2 is off. Q1 is on, it means VC1 is at 0 volt for some time and VC2 is at VCC for some time. ये VCC के इक्वल है और फिर it means जब as Q1 is on, it means that potential difference of base 1 will be equal to 0.7 volt and potential for VB2 will be less than 0.7 volt। तो ये 0.7 वोल्ट से आपके पास लेस होगा। तो आप इसको नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक ले आएंगे। नेक्स्ट आपने देखा कि Q1 टर्न्स ऑफ, इट मीन्स डैट व्हेन Q1 टर्न्स ऑफ ड्यू टू द चार्जिंग ऑफ C1 थ्रू R2 इट्स आउटपुट विल बी हाई और VCC के इक्वल आपके पास आएगी एंड देन Q2 विल टर्न ऑन। जब Q2 टर्न ऑन होगा तो इसकी आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगी। इट मीन्स डैट व्हेन Q1 टर्न्स ऑफ, तो बेस वोल्टेज हमने देखा, बेस वोल्टेज C2 का लेफ्ट साइड पे जो वोल्टेज है वो माइनस VC प्लस 0.7, तो ये बेस वोल्टेज डिक्रीज होगा और माइनस VCC प्लस 0.7 तक पहुंचेगा और यहाँ से VB2 विल अप्रोच 0.7 और ये 0.7 को अप्रोच करेगा और उस वक्त तक 0.7 रहेगा। जब तक ये 0.7 रहेगा उस वक्त तक Q2 विल बी ऑन। तो यहाँ आपके पास ये पहली स्टेट में आ गया। नेक्स्ट अब क्या है आपके पास? नेक्स्ट दिस साइकिल विल रिपीट फॉर Q2। पहले आपके पास Q1 ऑन था और Q2 ऑफ, अब आपके पास Q2 टर्न्स ऑन एंड Q2 टर्न्स ऑफ। अब देखते हैं कि लेफ्ट साइड से C2 जो है वो माइनस VCC प्लस 0.7 वोल्ट पे आ गया है। तो Q2 इज ऑन एंड Q1 इज ऑफ। अब हम इस सर्किट को देखते हैं। नो एज Q1 इज ऑफ, नो Q1 इज ऑफ, तो इट मीन्स डैट current cannot flow through Q1, current cannot flow through Q1, it means from the current that will flow through R1 and R2 में जो current आएगा that will flow through Q2 and R1 will try to charge this C1 from the left side और left side से जो C1 है that will be charged up to VCC आपके पास C1 जो है डेट विल बी चार्ज अप टू VCC फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड से इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.7 वोल्ट रहेगा, जैसा कि हमने पहले C2 के केस में देखा था। एंड इट विल नो चार्ज थ्रू R1 एंड फॉर R3 एंड R4 विल प्रोवाइड करंट that will pass through Q2 and R3 cannot provide current through Q1.
R3 का जो करंट है अब ये Q1 से पास नहीं करेगा, तो इट विल ट्राई टू चार्ज C2। अब ये C2 को चार्ज करेगा। अब C2 का पोटेंशियल कहाँ पे आपके पास, C2 का पोटेंशियल है माइनस वी सी सी प्लस 0.7, ये माइनस वी सी सी प्लस 0.7 से मूव करेगा अपवर्ड, और जिस पॉइंट पे जाके ये 0.7 वोल्ट हो जाएगा तो इट विल टर्न ऑन Q1 एंड Q1 विल टर्न ऑफ Q2। तो आपके पास दोबारा से Q1 जो है वो टर्न ऑन हो जाएगा, और ये कितने टाइम तक Q2 ऑन रहेगा, Q2 विल रिमेन ऑन एज लॉन्ग एज द पोटेंशियल डिफरेंस एट राइट लेफ्ट साइड ऑफ C2 ड्यू टू R3 इज लेस देन 0.7। जब तक C2 के लेफ्ट साइड पे पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 नहीं होगा उस वक्त तक Q2 ऑन रहेगा। इट मीन्स Q2 का जो ऑन टाइम है डेट कैन बी डिटरमाइंड बाय R3 एंड C2। तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो VCC माइनस 0.7 वोल्ट होगा C1 के लिए, और इट विल पुट द Q2 इनटू ऑन। नेक्स्ट आपके पास R3 विल चार्ज C2 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, चलें जी, R3 चार्जेस C2 फ्रॉम लेफ्ट साइड टू टर्न ऑन Q1 अगेन, और जब ये वोल्टेज इस पॉइंट से इंक्रीज करता हुआ नेगेटिव से इंक्रीज करता हुआ 0.7 पे पहुंचेगा तो Q1 विल टर्न ऑन। As Q1 turns on, it will pull the collector to the ground voltage। ग्राउंड पे आ जाएगा कलेक्टर, तो कलेक्टर के साथ यहाँ पे C1 का लेफ्ट साइड है जो कि VCC के इक्वल है, तो इट मीन्स डैट Q1 विल पुल दी C1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू ग्राउंड वोल्टेज और जीरो वोल्टेज। सो एज ए पॉजिटिव फीडबैक साइकिल, जैसा कि हमने C2 के लिए देखा था, तो C1 को अगर आप ग्राउंड पे पुल करेंगे, ज़ीरो पोटेंशियल पे आप ले जाएंगे लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड विल आल्सो मूव टू दी माइनस VCC टू मेंटेन दी पोटेंशियल डिफरेंस। तो राइट साइड आपके पास आ जाएगा 0.7 वोल्ट माइनस VCC, जिस तरह कि आपने C2 के केस में देखा था। तो यहाँ पे आपके पास जो C1 है डेट विल मूव, C1 मीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VB2। अब लेफ्ट साइड पे VCC था, तो Q1 के टर्न ऑन होने की वजह से Q2 will be turned off due to positive feedback of C1, and C1 will move to the potential difference of minus VCC plus 0.7, और ये जो C2 है that will maintain the potential 0.7। तो इस तरह के आपके पास सेकंड स्टेट में आप दोबारा से Q2 से Q1 पे चले जाएंगे। तो यूं आपके पास ये सर्किट जो है वो ऑसिलेट करेगा। तो here is the charge, तो it means that on time of Q2 depends on R3 and C2, कि जब तक यहाँ पे 0.7 वोल्ट नहीं आएगा इस साइड से उस वक्त तक Q2 ऑन रहेगा, और जब Q यहाँ पे 0.7 वोल्ट आएगा तो Q1 ऑन होगा, और Q1 का ऑन टाइम उस वक्त तक Q1 ऑन रहेगा जब तक यहाँ पे 0.7 वोल्ट नहीं आएगा, और ये डिपेंड करेगा R2 C1 पे। तो ऑन टाइम ऑफ Q2 डिपेंड्स ऑन R3 C2 एंड ऑन टाइम ऑफ Q1 डिपेंड्स ऑन R2 C1। तो ये आपके पास साइकिल है। आप किसी भी टर्मिनल से यहाँ से आउटपुट लेंगे, किसी भी टर्मिनल से, तो आपके पास ये एक इस तरह की ऑन ऑफ वेव फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ड्यूटी साइकिल। नो टाइम पीरियड, अब हम इस वेव का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो आपके पास ये Q1, यहाँ पे Q1 ऑफ है, और यहाँ पे Q1 जो है वो आपके पास ऑन पोजीशन में है। हियर इज ऑन, और ये आपके पास ऑफ, और ये नेक्स्ट आपके पास ऑन पोजीशन में है। तो Q1 इज ऑन एंड Q1 इज ऑफ।
तो Q1 का ऑफ टाइम मीन ऑन टाइम फॉर Q2 एंड ऑन टाइम फॉर Q1 मीन ऑफ टाइम फॉर Q2. तो टाइम पीरियड फॉर दिस waveform will be equal to T is equal to T1 plus T2, where T1 is the on time and T2 is the off time. Or T1 is dependent on R2C1 and T2 is dependent on R3 into C2. और जो अगर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे साथ log ऑफ 2 into R2C1 log 2 into R2C1, वो इसलिए कि यहाँ पे आप देखते हैं कि जो वैल्यू है वो -VCC प्लस 0.7 वोल्ट से 0.7 आ रही है. तो इनिशियल वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो चार्ज है वो माइनस या पोटेंशियल जो वो -VCC प्लस 0.7 है, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करें तो आपके पास एक लॉग वाली टर्म आएगी साथ. तो रेज इज टाइम पीरियड, सो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1/T. अब हम बात करते हैं ड्यूटी साइकिल की. तो व्हाट इज ड्यूटी साइकिल? ड्यूटी साइकिल इज द टाइम फॉर विच द सर्किट इज इन ऑन पोजीशन. तो ड्यूटी साइकिल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास आ जाएगा ड्यूटी साइकिल विल बी इक्वल टू ऑन टाइम ओवर टोटल टाइम, रेशियो ऑफ द ऑन टाइम ओवर टोटल टाइम. तो दोनों के लिए सेम होगा. और अगर आप इफ़ यू वांट टू 50% ड्यूटी साइकिल, 50% ड्यूटी साइकिल, तो इट मीन्स दैट ऑन टाइम इज इक्वल टू ऑफ टाइम, दैट इज ऑन टाइम विल बी इक्वल टू T/2. हाफ हाफ हो जाएंगे दोनों टाइम. इट विल बी इक्वल टू 1/2. अगर दोनों की रेशियो T1/T2 की वैल्यू 1/2 आ रही है तो इट मीन्स वेव हैव इक्वल ऑन टाइम एंड इक्वल ऑफ टाइम. और ये आप एक सिमेट्रिक वेव यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं 50% ड्यूटी साइकिल के साथ. सिमेट्रिक मीन बोथ ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम आर सेम. और सिमेट्रिक वेव आपके पास यहाँ पे आएगा. If you want to asymmetric wave, then you have to change the value of T1 and T2. तो symmetric wave के लिए आपके पास T1 must be equal to T2. It means that R2C1 must be equal to R3C2, which implies that R2 must be equal to R3 and C1 must be equal to C2. सिमेट्रिक वेव के लिए आपके पास ये कंडीशन होगी. और एसिमेट्रिक अगर आप चाहते हैं तो आप इन वैल्यू को चेंज कर सकते हैं डिफरेंट वेज के साथ. और नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे ऑन इनिशियल पावर अप जो है इस सर्किट का, कि इनिशियली कौन सा सर्किट कैसे ऑन होगा. तो उसके लिए आपने यहाँ पे इनिशियल पावर अप देखते हैं कि जब आप सडनली सर्किट को ऑन करेंगे तो आपके पास किस तरह से Q1 पहले ऑन होगा या Q2 पहले ऑन होगा. यहाँ तो हमने एज्यूम किया कि Q1 इज़ ऑन. तो नेक्स्ट हम ये पावर अप देखते हैं ज़रा इसके लिए. एट द इनिशियल पॉइंट बोथ C1 एंड C2 विल बी चार्ज्ड अप बाय R3 R2 फ्रॉम दिस साइड्स, एंड यहाँ से R4 और R1 की तरफ से चार्ज होंगी. एंड करंट विल फ्लो टूवर्ड्स बेस फॉर बोथ Q1 and Q2. Now if R2 and R3 have different values, then it will take different time for C1 and C2 to rise to a certain value of 0.7 volt. तो अगर R2 C1 की वैल्यू ज़्यादा है, R2 C1 की वैल्यू ज़्यादा है, तो इट मीन्स R3 C2 will have less time to reach 0.7 volt, so Q1 will be turned on and Q2 will be turned off due to feedback. But if R2 and R3 have same value, C1 and C2 have same value, then it will take same time for these two capacitor to reach at a value of 0.7 volt and 0.7 volt here. Now it is the internal structure of Q1
and Q2 that will determine the which transistor will be turned on. So due to small mismatch in the construction or internal structure of Q1 and Q2, it might be possible Q1 may be turned on at 0.6 volt and Q2 may be turned on at 0.8 volt. So Q1 will be turned on earlier than Q2. तो इस तरह से दोनों में से कोई एक ट्रांजिस्टर जो है वो डेफिनेटली पहले ऑन होगा, और अगर आप दोनों ट्रांजिस्टर सेम टाइम पे ऑन हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, दैट इज़ योर क्वेश्चन।